مسیح کی پہچان یعنی خدا کے بھید کو. اور پچھلے سنڈے جو ہم نے میسج دیا اس کی جو وہ کون سی آیت تھی میں نے تھوڑا ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے اور کرسیوں کا خط ہے اس کو پڑھے ذرا. خدا کے بھید یعنی مسیح کی بھید کی بات ہو رہی ہے. ہم نے اسٹارٹ لیا ہے میں نے پہلے بتا دیا خدا کے بھید کو یعنی مسیح کی پہچان کرسیوں دو بات اس کی آپ 2 اور 3 آیت پڑھیں ذرا. ہم نے اسٹارٹ لیا ہے یہاں سے جی پڑھے کوئی. میں آج کا میسج شروع کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ وہ ہمارا بنیادی پوائنٹ ہے بنیاد ہم کہاں سے چل رہی ہے. خدا مسیح کی پہچان. حیران نہیں ہونا پریشان نہیں ہونا خدا کا کلام. سو آئے کرسیوں ایک بات پر جو ہے کرسیوں اس کا دو باب اس کی 2 اور 3 آیتیں پڑھے جس نے نکالا ہے. پھر میں آج کی کلام کے بارے میں اسٹارٹ کروں تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت سے آپس میں جڑے رہے اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کرے اور خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانے جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے موجود ہیں. آمین. سو یہ ہمارا بنیاد جو ہے اس سال جو ہے اسٹارٹ ہم نے لیا کہ خدا کے بھید کو جان سکے. خدا کے بھید کو جان سکے. اور خدا کا بھید کیا ہے جاننے کے لیے مسیح کو پہچانے. کس کو پہچانے؟ مسیح کو پہچانے. کون سا بنیادی کام شروع کیا. آج ہم مسیح کے بھید کو ایک کھولیں گے اور وہ آپ کے لیے ہے ایک خوشی خبری خوشی کی خبر ہے جس کو خوشی خبر کہتے ہیں. یسوع مسیح خدا کا فضل ہے. یسوع مسیح خدا کا فضل ہے. یہ ایک آج بھید ایک مکاشفہ کھولیں گے. آپ پہچان سکیں کہ مسیح جو خدا کی پہچان ہے اور اس میں عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی 16 ہے. عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی 16 آیت کے اندر جو لکھا ہے غور سے اس کلام کو سنیے گا اور پھر اس کو جی لکھا ہے خدا کے کلام میں. بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلے تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. خدا کے پاک کلام پڑھیں اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. خدا کے بھید کو جانیں گے جو مسیح یسوع میں ظاہر ہے. یسوع مسیح خدا کا فضل ہے خدا کا بیٹا. یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے لیکن یہ بھی جان لیں کہ یسوع مسیح خدا کا فضل ہے. یسوع مسیح خدا کا فضل ہے. آج ہم فضل کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے. فضل کیا چیز ہے؟ فضل کا تخت لگا ہے. فضل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مفت کچھ چیز مل رہی ہے. کوئی چیز مفت مل رہی ہے. اب ایک مثال ہے کہ بچے کو ماں باپ ہر چیز پرووائڈ کرتا ہے. کھانا بھی دیتا ہے پیسے بھی دیتا ہے اچھے اچھے کپڑے دیتا ہے عمدہ کھلونے بھی چیزیں بھی لا کر دیتا ہے. بچہ ایک گلی کے اندر ایک اضافی چیز ملتی آواز لکھتی ہے لگائی جاتی ہے کہ بچوں کو کہا جائے کہ منڈی کی چیز لے جاؤ. تو بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے خوشی سے اس چیز کو خوشی سے لیتے ہیں. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ یہاں سے مجھے مفت مل رہا ہے. ایسے چھوٹے تو مل جانا ہے ایجلی چیز ادھر مل رہی ہے اس کو پہلے لے. تو عزیزو فضل جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے. اعلان ہو رہا ہے. فضل کا جو اعلان ہو رہا ہے یعنی خدا کا تخت جو ہے وہ لگا ہوا فضل کا تخت لگا ہوا ہے. یعنی مفت آپ کو نجات
मिल रही है। आज फजल का जो मफहूम एक ये भी है कि गुनहगार शख्स को हमेशा के अज़ाब से बचाने के लिए फजल एक खुदा की बड़ी बख्शिश है, खुदा की बड़ी बख्शिश है, और वो यीशु मसीह में हम में हुई है। और खुदा इस वक्त अजीजों फजल के तख्त पर बैठा है और वो फजल बांट रहा है, फजल बांट रहा है। इस लम्हे, इस घड़ी, इस जमाने के अंदर आज जो फजल का तख्त लगा हुआ है, फजल के तख्त से आप फजल को अपनी जिंदगी के अंदर ले लें, और यीशु मसीह खुदा का फजल है। और जब आपके पास फजल होगा तो मैं आज आपको 7 काम की बातें बताने वाला हूँ, 7 फायदे बताने वाला हूँ, जो फायदे आपको यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिल जाएंगे। और वो अगर आप उस फजल को, उस खुदा के कलाम को, खुदा के बेटे यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर रख लेंगे तो आपको बहुत फायदे मिलेंगे। गौर कर लीजिएगा बहनों भाइयों, खुदा का फजल बहुत सारे काम करता है, और आपकी जिंदगी के अंदर अगर खुदा का फजल हो गया है तो गौर कर लें, अगर तो ये 7 फायदे आप ले रहे हैं तो फिर इसका मतलब है खुदा का फजल आप पे है। अगर नहीं है तो फिर कभी आपकी जिंदगी में नहीं है, मेरी जिंदगी में या आपकी जिंदगी में नहीं फायदा हो रहा तो वो कुछ कभी है, और वो हमारे अपने ही काम है, हमारी अपनी ही बातें हैं, हमारी अपनी ही सोचें हैं, जिससे हमें फायदा नहीं हो रहा। पहली बात, हमें उससे निजात मिलती है, उससे निजात मिलती, फजल से निजात मिलती है। खुदा के बेटे यीशु मसीह से हमें निजात मिलती है, यानी यीशु मसीह खुदा का फजल है। अगर मुझ पर फजल है तो मुझे निजात मिल चुकी है। मैंने खुदा के फजल को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल कर लिया है, मैंने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रख लिया, तो मुझे निजात मिल चुकी है। क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर हम पढ़े तीतुस का खत, उसका 2 बाब, उसकी 11 और 12 आयत के अंदर जो लिखा है, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है, सब आदमियों की निजात का बायस है। अजीजों, इसलिए निजात जो है वो खुदा के फजल से है, और यीशु मसीह खुदा का फजल है, यीशु मसीह खुदा का फजल है, और खुदा का फजल जाहिर हुआ है, खुदा का फजल जाहिर हुआ है। जब मुझ पर जाहिर हुआ है, आप पर जाहिर हुआ है, तो फिर हमने अगर उस फजल को अपनी जिंदगी के अंदर संभाल लिया है, रख लिया है, उसके कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रख लिया है, तो निजात यकीनी आपको मिल चुकी, निजात आपको मिल चुकी है। इस तरह से अजीजों 12 में लिखा है, और हमें तरबियत देता है, हमें तरबियत, खुदा का फजल जो है, खुदा का कलाम जो है, यीशु मसीह जो है, जो पाक रूह है, वो हमें क्या करता है? तरबियत देता है, ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे, रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे इस मौजूदा जहान में। अगर तो हम रास्तबाजी दीनदारी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी अच्छी बात तो नहीं है। अपने जिंदगी के ऊपर ये पॉइंट नोट कर ले कि मेरी जिंदगी में ये कमी है, मैं रास्तबाजी के साथ जिंदगी बसर करूं। पहला फायदा जो आपको निजात मिली है, ये खुदा का फजल है, और वो यीशु मसीह के वसीले से है। और मेरे अजीजों, दूसरा जो फायदा है वो ये है
کہ مجھے اور آپ کو گناہوں سے کیا ملی ہے جی؟ معافی ملی ہے، گناہوں سے نجات ملی ہے، گناہوں سے معافی ملی ہے۔ کتنے لوگوں کا ایمان ہے اس بات پہ کہ مجھے گناہوں سے معافی ملی ہے؟ میرا تو ایمان ہے، میرا تو بھروسہ ہے خداوند یسوع مسیح پر۔ میرے عزیزو، تمام ایماندار ان کا یہ بھروسہ اور ایمان ہونا چاہیے خداوند یسوع مسیح پر کہ اس کے وسیلہ سے مجھے ہمیشہ کی زندگی ملی، کیونکہ وہ مر گیا، دفن کیا گیا، تیسرے روز وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اسی طرح وہ ہمیں بھی مردوں میں سے زندہ کرے گا اور وہ اپنے ساتھ تخت پر اٹھائے گا، اور گناہوں سے معافی ہمیں ملتی ہے۔ دوسرا فائدہ، دوسرا جو کام آپ کی زندگی کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے، وہ گناہوں سے معافی ملتی ہے۔ اسی پہلا باب اس کی 7 آیت عزیزوں پڑھے تو لکھا، ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ فضل کی دولت کے موافق ہمیں کیا حاصل ہے؟ گناہوں کی، قصوروں، جو ہم نے قصور کیے، جو ہم نے گناہ کیے، ان کی ہمیں کیا جی؟ معافی ملتی ہے۔ اس سے یعنی خدا کے فضل سے مجھے اور آپ کو گناہوں کی معافی ملتی ہے، اور خدا کا فضل جو ہے وہ یسوع مسیح ہے۔ خدا کا فضل یسوع مسیح ہے۔ یہ ایک بھید ہے، یعنی ہم نے کرسیوں کے اندر یہ پڑھا، خدا کے بھید یعنی مسیح کو پہچانے، خدا کے فضل کو، خدا کے فضل کو، خدا کے رحم کو پہچانے کہ اس وقت خدا کا تخت لگا ہوا فضل کا، اور اس فضل کے تخت سے اپنے لیے فضل جو ہے وہ نصیب کرنے، آپ کو فضل بانٹا جا رہا ہے، آپ کو فضل دیا جا رہا ہے، اور فضل یہ ہے کہ جو اس سے آپ کو اپنے گناہوں سے جاجی معافی ملتی ہے۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس فضل کی دولت سے حاصل ہے۔ عزیزو، اگر ہمیں یہ یقین ہے اس سے ہمیں فضل ملتا ہے، اس سے ہمارے گناہوں کی معافی ملتی، تو ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں یہ فائدہ لے لینا چاہیے۔ مفت مل رہا ہے، یہ نجات مفت مل رہی ہے، خدا کا فضل مفت آپ کی زندگی کے لیے ہے، مل رہا ہے، لے لیجیے۔ اور تیسرا ہے، ہمیں اس سے میراث ملتی ہے، خدا سے ہمیں میراث کے طور پر کچھ چیز ملتی ہے، یعنی خدا کے فضل کو قبول کر لینے سے، خدا کے بیٹے یسوع کو قبول کر لینے سے ہمیں کوئی میراث ملتی ہے، اور وہ میراث اس رومیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی 16 آیت کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوئی میراث ملتی ہے، اور لکھا ہے 4 باب 16 آیت رومیوں کا خط، اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے۔ میراث کہاں سے ملتی ہے؟ ایمان سے ملتی ہے، اور ایمان کیا ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانا کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح خدا کا روح ہے، یسوع مسیح خدا کا فضل ہے جو مجھ پر ہوا، سارے جہان پر ہوا ہے، وہ خدا کا فضل ہے، اور اس فضل سے ہے ہمیں میراث ملتی ہے۔ لکھا اس واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ کل وعدے، وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے۔ خدا کا وعدہ کل نسل کے لیے قائم ہے، لیکن اگر نسل فرما بردار ہو، اگر نسل فرما بردار ہو تو
लेकिन ना सिर्फ उस नस्ल के लिए जो शरीयत वाली है, बल्कि उसके लिए भी जो इब्राहिम की मानद ईमान वाली है। एक नस्ल जो शरीयत वाली है, एक नस्ल जो है वो ईमान वाली है, और जो शरीयत वाली नस्ल है वो अब्राहम से चलती है। ईमान वाली नस्ल जो है वो यीशु मसीह से चलती है। जितनों ने उसे कबूल कर लिया, उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। एक नई उम्मत, एक नई नस्ल जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से शरीयत के हुक्मों को पूरा करने से कोई खुदा का बेटा नहीं बनता, लेकिन यीशु मसीह को कबूल कर लेने से, यीशु मसीह पर ईमान लाने से आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते। एक नई नस्ल, नई उम्मत बनती है, और यही वो मिरास है। अजीज भाइयों बहनों, यही वो ईमान से मिरास आपको मिलती है कि आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। मैंने बताया कि ये 7 फायदे, 7 जो है काम मेरे और आपके लिए बड़े फायदेमंद है। अगर खुदा के फजल को, खुदा के बेटे यीशु को, खुदावन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर ले लेंगे, रख लेंगे, कबूल कर लेंगे, तो उस पर ईमान लाने से आप ईमान में, ईमान लाने वाली उस उम्मत के, उस खानदान में शामिल हो जाएंगे जो खुदा के बेटे और बेटियां। इसी तरह अजीजों, चौथा जो है वो फायदा आपके लिए, मेरे लिए चौथा फायदा है जो दुनिया के अंदर दुनियावी चीजें कसरत से मिलती हैं। दुनियावी चीजें कसरत से मिलती हैं। अगर दूसरा ग्रंथियों उसका 9 बाब उसकी 8 आयत पढ़े तो उसमें गौर कर लिए, जो दुनिया की चीजें तलाश कर रहे हैं, जिनको अभी तक नहीं मिल रही, वो खुदा के फजल को, खुदा के कलाम को आज अपनी जिंदगी के अंदर रख ले। उनको दुनिया की चीजें भी कसरत से मिलेगी। जो दुनिया की दौलत की तरफ दौड़ लगाए हुए हैं, ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, जो उनको नहीं मिल रही, तो यीशु मसीह को कबूल कर। आपने पिछली जिंदगी बर्बाद कर ली है ढूंढ ढूंढ के, अगर नहीं मिली तो आज खुदा का कलाम सुन लीजिए, आज खुदा के कलाम को कबूल कर लिए। ये दुनिया की चीजें तलाश करने वालों के लिए ये हवाला है। चौथा फायदा, उससे दुनियावी चीजें कसरत से मिलती हैं, उससे दुनियावी चीजें कसरत से मिलती हैं, यानी खुदा के फजल से दुनियावी चीजें कसरत से मिलती हैं। और खुदा का फजल जो है वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के वसीला से ही सारी चीजें दुनियावी जो है कसरत से मिलती हैं। और लेकिन और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे। तुमको क्या चीज है जी? हर चीज काफी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। मेरे अजीजों, ये बात हो रही है चीजों की लोगों के पास कमी है, लोगों के पास चीजों की, खाने की कमी है, पीने की कमी है, पहनने के लिए कपड़े की कमी है, इस्तेमाल करने के लिए पैसे की कमी है। लोग दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं। आज भी खुदा का मुकद्दस दिन है, यीशु मसीह ताज मुर्दों में से चीखने का दिन है, ये इतवार का दिन है, इबादत का दिन है। खुदा का कलाम बयान करता है, शरीयत के अहकाम है, उनमें लिखा है कि 6 दिन तुम मेहनत और काम काज करना, 7वें दिन क्या करना?
आराम करना। और यीशु मसीह ने फरमाया है कि ऐ बोझ तले थके हुए सब लोगों मेरे पास हो, मैं तुमको आराम यीशु मसीह के पास है। और आराम कहाँ से मिलेगा? खुदा के पास आने से, खुदा के घर से, जहाँ खुदा के घर के अंदर हम मार खाने हैं, हम बड़े सारे खजाने हैं। और वो फजल का खजाना यीशु मसीह है, खुदा का भेद है। जिनको चीजें नहीं मिल रही वो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रख ले, नहीं तो वो दुनिया की चीजों की तलाश में रहेंगे। और मेरा एक बहुत ही बुजुर्ग उस्ताद और साथी दोस्त भी था, वो ये एक बात कहता था, एक तेरी मर्जी है, खुदा कह रहा है एक तेरी मर्जी है आदम है इंसान, एक तेरी मर्जी है, एक मेरी मर्जी है। जे तू पूरी करेगा मेरी मर्जी तो फिर मैं तेरी हर मर्जी को पूरा करांगा, ते जे तू करेगा अपनी मर्जी पूरी तो फिर तेनू तेरी मर्जी विच ही रोल दिया, तेनू तेरी मर्जी ची रोल देगा। वो लोग जो दुनिया की चीजें तलाश कर रहे हैं, वो दुनिया की चीजें तलाश करते करते ही मर जाएंगे, लेकिन वो चीजों को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीजें काफी मिकदार में जो मिलेगी वो खुदा के फजल से मिलेगी। और खुदा का फजल जो यीशु मसीह है, अगर उस शख्स की जिंदगी के अंदर खुदा का कलाम नहीं है, खुदा का फजल नहीं है, खुदा यीशु मसीह नहीं है, तो फिर उसको वो चीजें भी नहीं मिलेगी, वो तलाश करता रहेगा। इसलिए अजीजों, दुनियावी चीजें जो कसरत से खुदा के फजल से ही, खुदा के फजल से ही मिलती है, और आप पर खुदा का फजल है। इसलिए अजीजों, अपनी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम को मजबूती से थामे रखो। और फिर छठा फायदा है, ईमानदारों के लिए आपने जो खुदा के फजल को, खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल किया, आप जो उस पर ईमान लाए हैं, आप जो उस पर ईमान लाए हैं, ईमानदारों की तरक्की होती है, ईमानदारों की तरक्की होती है। और दूसरे लोग जो कुछ चीजें हैं वो ईमानदारों से शायद उनकी ज्यादा हो, लेकिन ईमानदारों की दौलत जो है, जो उनके पास है, वो उनके पास नहीं है। और खुदा के कलाम के अंदर से हम देखेंगे। और अजीजों, ईमानदारों की तरक्की, ईमान की किताब उसका 20 बाब उसकी हम 18 के अंदर देखेंगे। सॉरी, ईमान 20 बाब उसकी 28 है। लिखा, बस अपनी और सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रोल कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिस उसने खास अपने खून से मोल लिया है। गलाबानी करने से जो आपको चीजें खुदा ने दी हैं, उनकी क्या करनी है? हिफाजत करनी है। हिफाजत करनी तो तरक्की होगी। खुदा ने आपको मिरास दी है, औलाद दी है, खुदा ने आपको मिरास दी, औलाद दी है। आप इनकी क्या करें? हिफाजत करें। हिफाजत किस तरह करें? आप इनको खुदा का कलाम जो सिखाएंगे, आप इनकी परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे, तो ये आपकी तरक्की की, आपके खानदान की तरक्की का सबब बनेगा। दुनिया में ये आपके खानदान की तरक्की का सबब बनेंगे। अगर आपने अपने माल की, अपनी औलाद की हिफाजत नहीं की, इनको छोड़ दिया खुला, तो जब एक मिसाल देता हूं, घर का दरवाजा खुला हो, खाना पीना पड़ा हो, तो वहां कुत्ते भी आते हैं, बिल्लियां भी आती, जो चीज मर्जी आती है मुंह मारते, किसी भी जगह पे ऐसे देता है। अगर दरवाजा बंद हो
अगर दरवाजा बंद हो तो आपकी चीजें हिफाजत में है। आप इस मिसाल को समझ ले, इस मिसाल को समझ ले। आप अपनी औलाद को संभाल रहे हैं या नहीं, आप किस तरह से उनकी तरबियत कर रहे हैं। ईमानदारों की तरक्की कब रुकती है? जब वो अपनी मिरास की हिफाजत नहीं करते। मिरास खुदा ने सबसे बड़ी जो औलाद मुझे और आपको खुदा ने जमीन पे मिरास दी है। दुनिया में लोग समझते मिरास ये माल जानवरों को, दौलत को, गाड़ियों को, जमीन को, ये मिरास नहीं है। दुनिया में आप किसी रिश्तेदार से मिलेंगे तो आपको वो पहले क्या पूछेगा? हाँ जी भाजी, भाई जी, बहन जी की हाल है, सुनो बच्चे का की है। ऐसी बात है? किसी ने कभी पूछा है आपसे तुम्हारी मोटरसाइकिल का की हाल है? किन्नियां ने मोटरसाइकिल, किन्ने मकान? कभी किसी ने आपको पूछा? कोई खड़ा करके कहे मुझसे जी फाज साहब मैंने पूछा, मैं थोड़े पुत्रों का नहीं पूछा, मेरे धिया का नहीं पूछा, मैंने मेरी मोटरसाइकिल का तो मेरी गाड़ियां कभी नहीं पूछेगा। मिरास जो है वो औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, और इस मिरास की क्या करो? हिफाजत करो, आपकी तरक्की हो जाएगी। ईमानदार, जब दुनिया में लोग यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, अपनी औलाद को भी उस कलाम के मुताबिक चलाते हैं, वो तरक्की करते हैं। नहीं तो फिर वो भी जिन्हें कर लेते उसी अगे आप समझ करना जी आम होती वो हुई। आगे जो छठा है, छठा फायदा जो है वो गौर कर लिए, आसमानी बादशाही जो यकीनी है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने फरमाया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। इसकी मुनादी के लिए भी, आसमान की बादशाही की मुनादी के लिए भी कहा गया है। और ये खुशी की खबर आप सबके लिए है, जितने लोगों तक ये आवाज जा रही है और जितने लोग इस कलाम को सुनेंगे और इस कलाम को जान जाएंगे, उनके लिए आसमानी बादशाही यकीनी तौर पर है। उनको रोमियो 5 बाब उसकी 17 आयत, रोमियो 5 बाब उसकी 17 आयत, ये बड़ी मशहूर आयत है। ये बड़ी मशहूर आयत है क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए से बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। लफ्ज आ गया कि जरूर। खुदा के बरगजीदा बेटों और बेटियों, खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोगों, ये बात सुन लो, ये बात लिखी है, यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। लफ्ज़ है जरूर ही, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। जरूर का मतलब है लाजम है, ये लाजमी बादशाही करेंगे जो खुदा के फजल को, खुदा के बेटे यीशु को, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रख लेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये खुदा का फजल है, खुदा का फजल का तख्त लगा हुआ है, और खुदा के फजल के तख्त के अंदर आपके लिए बादशाही रखी है। कितनी बड़ी बात है कि आप खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल हो जाए, खुदा के फजल को अपनी जिंदगी के अंदर ले ले। वैसे इस आयत को आधे से को कुछ और तरह से भी बयान करते हैं, जो जब एक शख्स के वसीला से गुनाह आया और मौत आई। लेकिन अगला आयत का हिस्सा जो
खुदा का फजल है वो यीशु मसीह है। और वो बता रहे जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, कम लोग हैं खुदा के फजल को, खुदा की बख्शिश को अपनी जिंदगी के अंदर हासिल करते हैं। तो जो हासिल करते हैं उनके लिए लिखा है कि यीशु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी में जरूरी वार्षिक करेंगे। और ये यकीनी बात है। मैं खुदा का खादिम हूं, आपसे ये बात अर्ज भी करता हूँ और आपको तकीदन ये बात तरबियत के तौर पर देता हूँ। ये बात जरूरी है कि यीशु मसीह को कबूल कर लो, यीशु मसीह पर ईमान ले लो, यीशु मसीह को जान लो, खुदा के भेद को पहचान लो कि खुदा का भेद यदि मसीह यीशु जो है उसको जान लो, उसको अपनी जिंदगी के अंदर रख लो कि यीशु मसीह खुदा का कलाम है। यीशु मसीह ने फरमाया है जिस